Good morning, students. Today we are going to do the first chapter of supplementary reader from the class 9th NCERT book Moments. The name of the chapter is The Lost Child, and as the name depicts, the story is about a child who gets lost in the fair. The story is written by Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand was an Indian writer in English, notable for his depiction of the traditional Indian society. He was one of the first India-based writers in English to gain an international readership. Just go through the introduction of the story. The Lost Child is the story of a small child who gets lost in a fair. He had gone with his parents to the fair, but loses them when he gets engrossed in looking at the roundabout swing. The story highlights the bond of love and affection that the child shares with his parents. Before losing them, he had been demanding different things like sweets, balloons, flowers, swings, etc. Once he loses them, he is picked up by a stranger. The stranger tries to quieten the child by offering him all these things that he had demanded from his parents, but the child does not want them anymore. He wants his parents first. तो इस बच्चे में एक कहानी छोटे बच्चे की है जो मेले में गुम जाता है. जैसे सब बच्चों की आदत होती है कि वो कहीं पे भी मार्केट में जाएं या किसी नई जगह पे जाते हैं तो वो सारी चीज़ें जो उनके लिए नई होती हैं, नॉवल होती हैं, उन सबको देखने में बिजी हो जाते हैं और उसी में ही खो जाते हैं. और ये जो बच्चा है वो भी इन्हीं सब चीज़ों को देखने में इतना एनग्रॉस्ड हो जाता है कि उससे उसके पेरेंट्स ही छूट जाते हैं. अल्टीमेटली ही फाइंड्स द स्ट्रेंजर जो उसको क्वाइटन करने की, उसको कंसोल करने की कोशिश करता है. और लेकिन अब जब उसको वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है जो सारी उसने पेरेंट्स से डिमांड की होती हैं, बट द थिंग दैट ही वांट्स नाउ इज ओनली हिज पेरेंट्स. नाउ let us just begin with the story. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. इसमें जो बैकग्राउंड है, जो सेटअप है, जो सेटिंग है, दैट इज ऑफ द रूरल बैकग्राउंड. और यहाँ पे लोग जो है वो एक फेयर में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं. दे आर ऑल गेटिंग रेडी टू गो टू अ फेयर. और यहाँ पे जो सीजन है वो भी चेंज हुआ है. इट हैज चेंज फ्रॉम विंटर सीजन टू द स्प्रिंग सीजन. So when the people are coming out from the narrow lanes and alleys, जो छोटी छोटी संकरी गलियां हैं वो सब छांव से ढकी हुई हैं. जो पेड़ों की छांव है वो अभी भी उन गलियों में नजर आ रही है. And they are very gaily clad. Gaily means happily, clad means dressed up, and they are coming as a crowd. So because they are going to a fair, they are emerging out, they are coming out from the streets and they are very happily dressed up. And you can see in this picture also that people are going and they are all ready to go to a fair. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. और different modes of transport वो use कर रहे हैं उस fair तक पहुँचने के लिए. Some are walking, some are riding on horses, some are sitting in bullock carts and bamboo carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. और एक छोटा, इन सब लोगों के बीच में एक छोटा बच्चा है जो अपने फादर के साथ में जा रहा है. एंड ही इज ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रिम जो होता है किसी भी कंटेनर का, यूटेंसिल का, जिसमें हम कुछ लिक्विड डालते हैं, उसका अपर मोस्ट पार्ट होता है. तो वो ब्रिम अप टू द ब्रिम होने का मतलब है कि वो वहाँ तक फुल होना. और ये ब्रिमिंग ओवर हो रहा था, यानी कि वो ओवरफ्लो, ही वॉज ओवरफ्लोइंग विद लाइफ एंड लाफ्टर बिकॉज ही वॉज सो हैप्पी ऑन गोइंग टू द फेयर. Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. अब उसके पेरेंट्स उसको कॉल कर रहे हैं कि आओ बच्चे, आओ हमारे साथ में. और क्योंकि वो इसलिए उनको कॉल करना पड़ रहा है बिकॉज ही इज लैगिंग बिहाइंड. टू लैग बिहाइंड मीन्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह जाना. एंड वाई the reason behind his being lagged behind is that he is fascinated by the toys in the shop. जो वहाँ पे लाइन्स लगी हुई हैं टॉयज की शॉप की, वो उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि वो उसी को ही देखने में बिजी हो रहा है. दैट इज वाई ही इज लेफ्ट बिहाइंड बाय हिज पेरेंट्स.
और वो हरी करता है, अपने जल्दी करता है अपने पेरेंट्स की तरफ जाने के लिए, क्योंकि उसके फीट जो थे वो ओबीडिएंट थे। उसके पेरेंट्स कॉल कर रहे थे तो वो उनकी आज्ञा का अनुसरण कर रहा था, उनके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा था। बट जो उसकी आईज थी वो अभी भी वो जो रिसीडिंग टॉयज थे, रिसीडिंग मीन्स जो हमारे पीछे रह जाती है कोई चीज़, तो वो जो रिसीडिंग टॉयज थी, उसके पीछे रह जाने वाले टॉयज थे, उसकी आंखें अभी भी उन्हीं टॉयज को देख रही थी, उन्हीं के पे ही घूम रही थी। इट वॉज लिंगरिंग ऑन दोज टॉयज ओनली. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. और जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के पास में पहुंचता है जहां वो उसका वेट कर रहे होते हैं, तो वो उसकी जो डिजायर होती है, उसकी जो इच्छा होती है, कौन सी इच्छा? उन टॉयज को लेने की इच्छा, वो उसको सप्रेस नहीं कर पाता. तो सप्रेस समथिंग मीन्स टू पुट एन एंड टू समथिंग, उसको दबा देना, उसको रोक देना किसी चीज को. लेकिन ये जो इसकी डिजायर थी उन टॉयज को पाने की, वो उसको और नहीं रोक पाता है. और इवन दो उसको मालूम होता है कि जो उसके पेरेंट्स की आईज में जो एक्सप्रेशन है वो रिफ्यूजल का एक्सप्रेशन है. रिफ्यूजल मतलब कि वो मना कर देंगे उसको, क्योंकि यही हमेशा से होता आया था. तो उनका वो फेमिलियर वे था, उनका ओल्ड वे था उसकी एक्सप्रेशन का, उनकी आईज का एक्सप्रेशन का, कि उसकी आंखों में उसको मनाही ही दिखाई देती है. I want that toy, he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. अब जो बच्चा है वो एक्चुअली उनको रिक्वेस्ट करता है कि आई वॉन्ट दैट टॉय, लेकिन उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं रेड आइड. रेड आइड मीन्स गुस्से में देखना. और ये जो उनका लुक था ये उसके लिए बहुत ही फेमिलियर था, यूज्ड टू था उनके ऐसे लुक के लिए. और ये जो लुक था वो किसी एक टायरेंट से मैच करता था. जो टायरेंट होता है वो एक ऐसा रूलर होता है जो अपनी प्रजा को सप्रेस करके रखता है और बहुत ही क्रूअली उनके ऊपर राज करता है. तो वो जो फादर का लुक था वो ऐसा था और एंगर से भरा हुआ था, और वो लुक उसको मालूम था बिकॉज ही वॉज फेमिलियर विद दैट लुक ऑफ अ टायरेंट इन हिज फादर्स आईज. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" But mothers, as usual mothers, उसकी जो मदर थी उनका हार्ट बिल्कुल ही मेल्टेड था, पिघला हुआ था और बहुत ही सॉफ्ट था उसके प्रति. तो उन्होंने उसको अपना हाथ दिया, फिंगर दी होल्ड करने के लिए, और बोला कि देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है. बिकॉज शी वॉन्टेड टू distract him from the thoughts that he had earlier in his mind. वो जो लेना चाहता था उससे उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी, और उसको डांट भी पड़ चुकी थी अपने फादर से. उनको जो लुक था उससे वो समझ गया था कि वो बहुत ही गुस्से में है. तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मदर ने बहुत ही टेंडरली, बहुत ही सॉफ्टली उसको हाथ से पकड़ा और उसका ध्यान हटाने की वहाँ से कोशिश की. It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. और जब वो अपने बच्चे को बोलती है कि देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. वो एक सरसों का खेत था जिसमें बहुत सारे फूल उगे हुए थे. उस टाइम उसका फ्लावरिंग सीजन चल रहा था. एंड एज यू मस्ट हैव सीन कि मस्टर्ड के जो फ्लावर्स होते हैं दे आर ब्राइट ब्यूटीफुल येलो कलर्ड फ्लावर्स, और जब वो मीलों तक फैले हुए नजर आते हैं इवन लैंड पे, तो वो मेल्टेड गोल्ड की तरह लग रहे थे, जैसे कि सोना पिघला हुआ है मीलों तक ग्राउंड में. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब क्योंकि वो फील्ड थी उसमें इतने सारे फ्लावर्स थे, तो जो इंसेक्ट्स होती हैं जो इनका नेक्टर सक करते हैं वो सारे इंसेक्ट्स वहाँ पे नजर आ रहे थे. दे वर ड्रैगन फ्लाइज, दे वर बटरफ्लाइज एंड दे वर बीज ऑल्सो. लेकिन ये जो ड्रैगन फ्लाइज थे ये उनका इंटरसेप्ट कर रहे थे, पास इंटरसेप्ट करना कि उनके रास्ते में आ रहे थे. ये बीज और बटरफ्लाइज जो थी वो उनकी जगह लेना चाहते थे, बिकॉज दे वर इन अ रेस ऑफ sucking the sweetness from the flowers. और जो ये जो ड्रैगन फ्लाइज थे इनका बहुत ही पर्पल गॉडी कलर था. गॉडी होता है जो बहुत ही ब्राइट होता है, बहुत ही शाइनी कलर होता है. ऐसे कलर के उनके विंग्स थे और वो बार बार उनके बीच में आ रहे थे.
The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. और उसकी आईज जो थी वो बच्चे की, वो उन्हीं की गेज मतलब होता है उसकी जो नज़र होती है वो उन्हीं ड्रैगन फ्लाइज को और इंसेक्ट्स को फॉलो कर रही थी। और जैसे ही वो कोई भी अपने विंग्स को स्टिल करता था, फ्लैप करना अपने विंग्स को रोकता था, तो वो कोशिश कर रहा था कि उसको फट से पकड़ ले जैसे ही वो रेस्ट करने लगे। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hand. लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है कि हाँ अब तो टाइम आ गया है कि अब मैं इसको कैच कर लूँगा, उसी टाइम वो जो बटरफ्लाइज या ड्रैगन फ्लाइज थी वो अपने विंग्स को फ्लैप करके और वहाँ से उड़ करके चली जाती थी। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on the footpath." लेकिन इतने में ही उसकी मदर उसको एक चेतावनी भरी आवाज देती हैं कि चलो बच्चे आ जाओ और इस फुटपाथ पे तुम चलने लगो। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो अपने पेरेंट्स की तरफ बहुत ही हैप्पीली रन करके जाता है और कोशिश करता है कि उनके साथ में साथ कदम से कदम मिला करके चल सके। अब्रेस्ट मीन्स जो साइड बाय साइड एक साथ एक ही डायरेक्शन में फेस करते हुए जो चलते हैं, तो वो कोशिश करता है बट अगेन ही इज लेफ्ट बिहाइंड। एंड नाउ दिस टाइम द रीजन वॉज द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स एंड वर्म्स दैट वर कमिंग आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेसेस। तो जो इंसेक्ट्स और वर्म्स अभी तक हाइड करे हुए थे, छुपे हुए थे कहीं पे, वो एकदम से ग्रुप में सारे के सारे बाहर आने लगते हैं बिकॉज दे टू वांटेड टू एंजॉय द सनशाइन। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall. He ran towards them. और उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते हैं कि आ जाओ बच्चे, अब तुम आ जाओ। और इस टाइम तक इसके पेरेंट्स जो हैं एक ग्रोव में, शेड में रेस्ट करने लगते हैं। ग्रोव जो होता है इन अ वे यू कैन से दैट इट इज अ वेरी टाइनी फॉरेस्ट। जो ग्रुप ऑफ ट्रीज होता है उसको ग्रोव बोलते हैं। और उसकी जो छाया आ रही होती है, उसमें शेड आ रही होती है, तो वहाँ पे एक वेल भी होता है, कुआं होता है, उसके एज पे वो बैठ जाते हैं और वो बच्चा उनके पास में दौड़ करके जाता है ताकि वो पेरेंट्स के पास पहुंच जाए। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जब वो उस ग्रोव में एंटर करता है, उस ग्रुप ऑफ ट्रीज में एंटर करता है, एंड दोज वर द फ्लावरिंग ट्रीज, उनमें फ्लावर्स होते हैं और विंड की वजह से जो हवा चलती है उससे वो उन ट्रीज पे से फ्लावर्स रेन की तरह शार हो रहे होते हैं। रेन की तरह जैसे बारिश गिरती है वैसे ही वहाँ पे फूलों की बरसात हो रही होती है, उनकी पंखुड़ियाँ गिर रही होती हैं। और वो बच्चा कोशिश करता है कि उसको वो जल्दी से गैदर कर ले, इकट्ठा कर ले अपने हाथों के अंदर। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" लेकिन उसी टाइम उसको डव्स की कूइंग सुनाई देती है। डव इज अ बर्ड लाइक अ पिजन, जो व्हाइट कलर का होता है डव, वो उसको दिखाई देता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। जो कूइंग होती है दैट इज द साउंड ऑफ द डव्स एंड पिजन्स। तो कूइंग जब उनकी सुनाई देती है तो वो फटाफट से दौड़ के जाता है, अपने पेरेंट्स को उन डव्स के बारे में बताना चाहता है कि देखिए वहाँ पे डव्स हैं। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और अगेन वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है और अब जैसे उसने डव्स को देखा है तो उसके हाथ में जो इससे पहले जस्ट पहले वो काम कर रहा होता है, दैट वाज गैदरिंग द पेटल्स इन हिज हैंड्स, ही फॉरगॉट एवरीथिंग अबाउट देम एंड ऑल द पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स। Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. और इतने में फिर वापस उसको पेरेंट्स आवाज देते हैं कि आ जाओ बच्चे आ जाओ। और इस टाइम तक बच्चा एक नए काम पे लग गया होता है, दैट वाज ही वाज रनिंग अराउंड द banyan tree। एक banyan tree होता है, उसके आसपास वो कूद कूद के चक्कर लगा रहा होता है। केपर्स जो होता है प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट होता है,
जो बच्चे जब बहुत अपने आप को एंजॉय कर रहे होते हैं, मस्ती में जा रहे होते हैं, तब वो उसी मूवमेंट से वॉक करते हुए जाते हैं, उछलते कूदते हुए जाते हैं, तो वो भी उस बैनियन ट्री का चक्कर लगा रहा होता है। और उसी टाइम उसके पेरेंट्स उसको गैदर कर लेते, उठा लेते हैं और उसको जो मस्टर्ड As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वो उस विलेज के नजदीक पहुंचते हैं जहाँ पे फेयर लगा होता है, तो उस बच्चे को बहुत सारे दूसरे फुटपाथ दिखाई देते हैं, एंड ऑल दोज फुटपाथ वर फुल ऑफ क्राउड्स ऑफ पीपल। तो उन अलग अलग फुटपाथ जो थे, यानी कि जितने भी नियर बाय विलेजेस थे, वहां से भी बहुत सारे लोग उस फेयर में आ रहे होते हैं, वो सब उसको दिखाई देने लगते हैं। और वो ऐसा लगता है कि वो सारे जो हैं इस वर्लपूल ऑफ द फेयर जो है, वर्लपूल इज पानी में जो घुमेरी होती है वो होता है वर्लपूल। तो ये जो राउंड एंड राउंड उसको पानी में घूमता है जिस तरह से पानी, तो वैसा ही उसको वर्लविंड जैसा दिखाई देता है, वर्लपूल दिखाई देता है फेयर का, और जिसमें लोग सब एंटर कर रहे होते हैं, जहाँ पे लोग सब इकट्ठा हो रहे होते हैं। और ये सारा सीन देख करके उसके सामने डुअल इमोशंस उसके अंदर आते हैं। एक तो होता है रिपल्शन का और दूसरा होता है अट्रैक्शन का। तो एक जो है रिपल्शन वाला जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्राउड। जो इतना क्राउड है उसको देख करके उसको थोड़ा सा रिपल्शन फील होता है, थोड़ा सा घबराहट फील होती है, एंड अलोंग विद दैट ही इज ऑल्सो फैसिनेटेड बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर वेरी अट्रैक्टिव इन द फेयर। तो फेयर में उसको दूर से झूले नजर आते हैं, बहुत सारी शॉप्स नजर आती हैं, तो उस सब को देख करके भी वो फैसिनेट हो जाता है। तो ही इज हैविंग द dual emotion of the repulsion and attraction towards the world of fair that he was about to enter now. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब जैसे ही वो एंटर करता है, जो सबसे पहली दुकान वहाँ पे आती है कॉर्नर पे, एंट्रेंस के कॉर्नर पे, वो होती है एक स्वीट मीट सेलर की, यानी कि हलवाई की दुकान होती है। और वो सबको आवाज लगा लगा के बुला रहा होता है, अपने मिठाइयों के नाम बता रहा होता है, ताकि लोग अट्रैक्ट होकर के उसकी तरफ आए। और ये जो है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है उस काउंटर पे, उसके काउंटर पे, उसके शॉप पे। और उसका ऐसा लगता है, वो जब मिठाइयों को देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि ये जो मिठाइयाँ हैं, जो ढेर लगे हुए हैं मिठाइयों के, कलरफुल हैं और उनके ऊपर वर्क लगा हुआ है, सिल्वर का या गोल्ड का वर्क लगा हुआ है, और उसकी वजह से वो एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर की तरह लग रहा है, जैसे कि बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर होता है। जब हम दूर से किसी सिटी को देखते हैं, डिफरेंट हाइट्स ऑफ बिल्डिंग्स आर देयर, सिमिलरली द डिफरेंट हाइट्स ऑफ हीप्स ऑफ द sweets looked like an architecture of colored sweets to him. The child stared open-eyed and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. अब बच्चा जो है वो ओपन आइड रह जाता है, स्टेयर करता रह जाता है, और उसका माउथ वाटरिंग स्टार्ट हो जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, बिकॉज ऑफ द बर्फी, बिकॉज दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. I want that barfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So, without waiting for an answer, he moved on. अब बच्चा जो है अपनी इच्छा को मार नहीं पाता है और एकदम से बोलता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए, बट उसकी ये जो आवाज होती है, the sound in which he was requesting for the barfi is like a murmur only. वो केवल एक हल्की आवाज जैसी रहती है, मर्मरिंग की तरह रहती है, बड़बड़ाने जैसी रहती है, क्योंकि उसको मन ही मन ये बात पता होती है कि चाहे वो कितना भी अपनी रिक्वेस्ट के लिए बेग कर ले, उनसे भीख मांग ले, बट वो उसकी इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे. दे वुड नॉट पे एनी हीड टू इट. हीड करना मीन्स उसकी तरफ ध्यान देना, बिकॉज he knew that what would be the reaction of his parents. He knew that his parents are going to call him greedy. वो उसको बोलेंगे कि तुम भूखे हो, तुम लालची हो, इसलिए तुम्हें ये स्वीट चाहिए. तो इसलिए बिना वेट किए हुए, बिना किसी भी आंसर के,
वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. अब वहाँ पे आगे बढ़ते ही उसे एक फ्लावर सेलर दिखाई देता है जिसके पास बहुत सुंदर सुंदर मालाएं होती हैं, गार्लैंड्स होते हैं, और वो उन मालाओं को बेचने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके पास इवन गार्लैंड होती है गुलमोहर की। गुलमोहर इज अ ब्राइट रेड ब्यूटीफुल फायरी कलर्ड फ्लावर। और वो जो बच्चा होता है उसकी तरफ बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाता। रेजिस्ट करना अपने आप को रोक लेना होता है, बट ही वॉज irresistibly drawn towards those lovely beautiful garlands of flowers. और वो उस बास्केट की तरफ जाता है जहाँ पे फ्लावर्स एक हीप में, एक ढेर में पड़े होते हैं। So he went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, "I want that garland." और जैसे ही वो वहाँ पे नजदीक पहुँचता है तो उसकी इच्छा जो है वो मुंह से ना बाहर आती है कि मुझे ये गार्लैंड चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. अब उसको पहले से ही मालूम होता है कि उसके पेरेंट्स का जवाब क्या होगा। दे आर गोइंग टू रिफ्यूज फॉर दैट, और रिफ्यूजल का उनका रीज़न क्या होगा कि वो ये बोलेंगे कि ये जो फ्लावर्स हैं या जो गार्लैंड्स है ये बहुत ही चीप हैं, घटिया हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए वो बिना उनकी रिप्लाई का वेट किए हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. थोड़ा सा आगे जाते ही उसे एक बलून मैन दिखाई देता है जिसके पोल पे बहुत डिफरेंट कलर्स के बलून्स होते हैं। Some were yellow, red, green and some were purple and they were flying in the air. The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. तो बच्चा जो है वो उसकी तरफ बिल्कुल कैरिड अवे हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरह, क्योंकि वो जो इतने डिफरेंट कलर्ड के बलून्स होते हैं और उनके कलर्स भी सिल्कन कलर्स थे। सिल्कन इसलिए लगता है बिकॉज ऑफ द मटेरियल ऑफ द बलून। तो उसका जो मटेरियल होता है वो वैसा ही सिल्कन लुक देता है उन कलर्स को, और वो अपनी उसके अंदर एकदम से एक डिज़ायर आती है। एंड दे लुक्ड लाइक अ रेनबो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कलर्स। और उसके अंदर जो डिज़ायर आती है, दैट डिज़ायर वॉज टू पोजेस देम ऑल, कि मैं सारे के सारे बलून्स जो हैं वो अपने पास में ले लूँ। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. और उसको मालूम होता है उसके पेरेंट्स का जवाब ये होगा कि वो उसको कभी भी बलून्स लेने देने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे कि अब तुम बहुत बड़े हो गए हो और तुम्हारी कोई उम्र नहीं रही है बलून से खेलने जैसी। So he walked on farther. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. आगे स्नेक चार्मर मिलता है जो अपनी बीन बजा रहा होता है और उसकी बास्केट में एक कॉइल होकर के राउंड एंड राउंड एक स्नेक होता है और उसका केवल हेड रेज हुआ होता है, और वो जो उसका हेड रेज होता है वो बहुत ही ग्रेसफुली स्वे करता है, एक स्वैन के गर्दन की तरह म्यूजिक के साथ साथ। और उसका जो म्यूजिक होता है उसके इनविजिबल ईयर्स में ऐसे जा रहा होता है जैसे कि वाटरफॉल की जो रिपल्स होती हैं, उसकी जो लहरें होती हैं वाटरफॉल की, और वो इनविजिबल वाटरफॉल है, उसी तरह से उसके ईयर्स जो इनविजिबल म्यूजिक है वो भी उसके कानों इनविजिबल ईयर्स में जा रहा है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब उस बच्चे को पता होता है, वो पहुंचता भी है स्नेक चार्मर के पास में, मगर उसे मालूम होता है कि उसको वहां जाने के लिए मना ही है। फॉरबिड करना मतलब कि अलाउड नहीं होना, और क्या अलाउड नहीं होता है कि ऐसा अनप्लेजेंट म्यूजिक वो सुने, ऐसा कोर्स म्यूजिक सुने जैसा कि स्नेक चार्मर बजा रहा था। तो इसलिए वो वहां से आगे प्रोसीड कर जाता है। There was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. एक राउंड अबाउट होता है जो कि फुल स्विंग में चल रहा होता है और उसमें गोल गोल जो whirling मोशन में मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन घूमे जा रहे होते हैं, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और उनका लाफ्टर भी एकदम
चकरा देने वाला होता है, डिजी कर देने वाला होता है। The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. अब वो जो बच्चा है वो देख रहा होता है बहुत ही केयरफुली, इंटेंटली मीन्स केयरफुली, और फिर वो एक बहुत ही बोल्डली रिक्वेस्ट करता है उनसे। अभी तक तो उसने इतनी सारी रिक्वेस्ट जो कुछ भी की थी, एक ही रिक्वेस्ट उसने की थी, उसके बाद जो उसके फादर का लुक उसे दिखाई दिया था, उसके बाद से उसे मालूम चल गया था कि उसको आगे भी रिफ्यूज़ल ही मिलने वाला है सब डिमांड्स पे। तो वो बिल्कुल हाफ हार्टेडली और हाफ मन से और थोड़ी सी धीमी आवाज़ में ही अपनी रिक्वेस्ट को कह पाता है। बट जब ये स्विंग के पास में आता है तो एकदम से उसके अंदर बोल्डनेस आती है और वो बोल्डली उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस स्विंग पे जाना है। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब जब वो ये रिक्वेस्ट करता है तो उसको कोई भी रिप्लाई ही नहीं आता है, ना हाँ का जवाब आता है, ना में जवाब आता है। तो वो देखता है पीछे कि मेरे पेरेंट्स जो मेरे आगे आगे जा रहे थे वो कहाँ हैं, तो उसे वो वहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। दोनों साइड्स में देखता है, वहाँ पे नहीं होते हैं, पीछे देखता है, वहाँ पे भी नहीं दिखते हैं उनका, वहाँ कोई भी साइन नजर नहीं आ रहा होता है। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" अब जब वो ये देखता है कि है ही नहीं उसके पेरेंट्स वहाँ पे जहाँ उनको होना चाहिए था, जहाँ वो खड़े हुए थे, तो उसके अंदर से एकदम से डीप क्राई आती है और उसके सूखे हुए गले में से बाहर आती है, एकदम से सडन जर्क देते हुए, एक झटका देते हुए उसके बॉडी को, और वो एकदम फियर में, घबराहट में जोर से चिल्लाता है अपने मदर और फादर के लिए। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं जो बिल्कुल हॉट एंड फियर्स होते हैं, और उसका जो फेस होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। पहले जो उसके फेस पे हैप्पीनेस थी वो अब घबराहट में बदल चुकी होती है। इट वॉज कन्वर्स्ड विद फियर। Panic stricken, he ran to one side first, then to other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. अब वो इतना घबराहट हो चुकी है, उसको पैनिक स्ट्रिकन हो गया है वो, कि एक साइड में जाता है फिर दूसरी साइड में जाता है, हियर एंड देयर ही रन्स इन द डायरेक्शंस, बट ही डज नॉट नो वेयर टू गो टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स। मदर, फादर, ही वेल, और वो जोर जोर से चिल्लाता है अपने पेरेंट्स के लिए। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. और उसकी जो येलो टर्बन उसने पहनी होती है वो भी अनटाई हो जाती है इन सब घबराहट में, और उसके क्लोथ्स भी सारे डर्टी हो जाते हैं। और having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. इधर उधर दौड़ते दौड़ते ये जो रनिंग का रेज होता है, इससे उसको एकदम हारा हुआ महसूस करता है वो अपने आप को, और उसकी जो क्राइज होती हैं, जो तेज तेज आवाज में चिल्ला रहा होता है, अब वो सप्रेस हो चुकी होती हैं और सॉब्स में बदल चुकी होती हैं, यानी उसका रोना अब सुबकियों में बदल जाता है। At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. और वहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पे ग्रीन ग्रास पे उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, men and women दिखाई देते हैं, and he could see them through his filmy eyes. His eyes were covered with tears. उसके आगे उसकी आंखों में एक आंसुओं का कवर बन जाता है, एक फिल्म बन जाती है जिसके थ्रू वो देख पा रहा होता है इतने सारे लोगों को अपने सामने। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो बहुत ही केयरफुली देखता है उन सब लोगों के बीच में, और मोस्ट प्रोबेबली हिज पेरेंट्स वर वेयरिंग येलो क्लोथ्स, तो येलो पैचेस को देखता है उन लोगों के और कोशिश करता है उसमें अपने पेरेंट्स को ढूंढने की, लेकिन उसे वो वहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं, और उसे ऐसा लगता है कि ये सब लोग जो हैं वो ऐसे ही बिना बात के ही हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं जिसका कोई भी सेंस निकल के नहीं आ रहा है। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब वो दौड़ करके जल्दी से जाता है एक श्राइन की तरफ, एक टेम्पल की तरफ, जहाँ पे लोग क्राउड अप हो रहे होते हैं, इकट्ठा हो रहे होते हैं।
ज़्यादातर जो फेयर्स वगैरह होते हैं वो विलेजेस में मंदिर के पास में लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक टेम्पल था, एक श्राइन था। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sobs lingering, mother, father. अब जब वो उस टेम्पल तक पहुंचने की कोशिश करता है तो वो पूरा के पूरा लोगों से भरा हुआ होता है, इट वॉज फुल ऑफ मेन, और फिर भी वो उन लोगों के बीच में से ही दौड़ करके जाता है और उसकी सॉब जो है, उसकी जो सुर्खियाँ हैं वो चलती रहती हैं, और साथ ही साथ वो अपने मदर फादर को भी पुकारता रहता है। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. जैसे ही टेम्पल के पास पहुंचता है तो उसे एकदम से लगता है कि क्राउड, जो पहले इतना क्राउड था, वो और भी ज़्यादा घना हो गया है, और भी थिक हो गया है। Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को पुश करके अपने लिए जगह बना रहे होते हैं, और सारे के सारे मेन उसे वहाँ पे ऐसे लगते हैं कि लोग भाग ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत हैवी मेन हैं, और उनकी आईज जो हैं वो एकदम फ्लैशी हैं और मर्डरस हैं, यानी कि उसको सबके सब क्रिमिनल्स दिखाई दे रहे होते हैं वहाँ पे, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है। और उन लोगों के शोल्डर्स भी बहुत हेफ्टी होते हैं, हेफ्टी मतलब कि लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो बेचारा बच्चा छोटा सा होता है। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by the brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Mother, Father." अब वो जो बेचारा बच्चा होता है, पुअर बच्चा होता है, वो स्ट्रगल करता है कि किसी तरह से उनके पैरों के बीच में से जगह बना करके वो अंदर पहुँचे, मगर उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं लोगों की, वो इतनी ज़्यादा हार्श होती हैं, इतनी ब्रूटल होती है, इतनी रफ होती हैं कि उनके ऐसा लगता है कि वो इधर उधर होता रहता है, उसकी वजह से टू एंड फ्रो होता रहता है उनके मूवमेंट्स की वजह से। और एक बार तो ऐसे लगता है कि वो शायद नीचे कुचला ही जाता उनके फुट के नीचे, अगर वो अपने हाईएस्ट पिच पे अपनी आवाज़ की वो चिल्लाता नहीं, फादर मदर। A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. लेकिन एक आदमी वहाँ पे जो इतना पावरफुल क्राउड होता है उसके बीच में से भी उसकी आवाज़ को सुन लेता है, और बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह से बेंड होकर के, स्टूप मीन्स टू बेंड, तो वो बेंड होकर के उसको अपनी गोद में उठा लेता है, अपनी आर्म्स में ले लेता है। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. वो जो पूरा ये जो झुंड होता है लोगों का, उसके बीच में से वो जगह बना करके उसके पास जाता है, उसको उठाता है और फिर उससे पूछता है, और वहाँ से उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए हो और तुम किसके बच्चे हो। The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." लेकिन वो बच्चा सिर्फ रोए ही जाता है, और उसका रोना और ज़्यादा तेज़ होता जाता है, और वो यही चिल्लाता रहता है कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. "Will you have a ride on the horse?" he gently asked as he approached the ring. और फिर वो उसको सोचता है कि इस बच्चे को किसी तरह से बहलाया जाए, तो वो उसको राउंड अबाउट में ले जाता है, उस स्विंग के पास में ले जाता है जो मेरी गो राउंड होता है, जिसमें एनिमल्स होते हैं और उस पर बच्चे बैठ करके झूलते हैं, राउंड लेते हैं उस पर। तो वो उससे पूछता है, क्या तुम इस हॉर्स पे राउंड लोगे, इस पे राइड करोगे? उससे बहुत ही प्यार से बात करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उस रिंग के पास में पहुंचता है जहाँ पे वो स्विंग होता है, The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, "I want my father, I want my mother." लेकिन वो जो बच्चा होता है उसकी आवाज़ से सिर्फ ऐसी सुबकियाँ निकल रही होती है, वो भी बहुत ही श्रिलिंग आवाज़ में, और एक साथ बहुत सारी निकल रही होती हैं, जैसे वो 1000 टाइम्स श्रिल आवाज़ में सुबक रहा हो, सॉब कर रहा हो, और वो सिर्फ चिल्लाता है कि "I want my father, I want my mother." वो केवल अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता होता है। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब मैन जो है उसको उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे स्नेक चार्मर होता है, जहाँ पे वो अभी भी बीन बजा रहा होता है और कोबरा उस पे स्वे कर रहा होता है, डांस कर रहा होता है।
Listen to that nice music, child, he pleaded. और उससे रिक्वेस्ट करता है कि बच्चे सुनो, इसका कितना मधुर गीत है, संगीत है ये, तुम सुनो. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain. I want my mother, I want my father. वो उसे इतना रिक्वेस्ट करता है ताकि वो बच्चा किसी तरह से बहल जाए, इसका मन बहलेगा तो वो शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा. लेकिन बच्चा उस आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहता होता है, अपने कान बंद कर लेता है और तेज चिल्लाता है कि मुझे तो अपने मम्मी पापा ही चाहिए. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. उसको वो बलून्स के पास में ले जाता है और सोचता है कि शायद ये जो ब्राइट कलर्ड बलून्स हैं वो शायद इसका मन बहला दे, इसको डिस्ट्रैक्ट कर दे और इसको शांत करा दें. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. वो उसको परसुएड करता है, इंसिस्ट करता है कि तुम एक बलून खरीद लो, रेनबो कलर्ड बलून मैं तुम्हें ले दूं. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. I want my mother, I want my father. लेकिन बच्चा अपनी नजरें वहां से हटा. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. अब वो बच्चे को लेके जाता है गेट के पास में जहाँ फ्लावर सेलर बैठा हुआ होता है. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? वो उसको वो फ्लावर्स दिखाता है, उनको बोलता है देखो कितनी अच्छी स्मेल है इन फ्लावर्स की, क्या तुम एक गार्लैंड लेना चाहते हो अपने गले में डालने के लिए. The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. I want my mother, I want my father. लेकिन वो बच्चा वहाँ से भी अपनी नोज को टर्न अवे कर लेता, हटा लेता है और बोलता है कि मुझे तो केवल अपनी मदर और फादर ही चाहिए. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब वो जो डिस्कॉन्सोलेट चाइल्ड होता है, डिस्कॉन्सोलेट मीन्स जिसको हम कंसोल कर नहीं सकते हैं और उसके चार्ज में होता है, उस मैन के, उस स्ट्रेंजर के चार्ज में होता है वो बच्चा. तो वो सोचता है इसको मैं किसी तरह से तो मन बहलाऊं, इसको किसी तरह से तो ह्यूमर करूं. और शायद उसको लगता है कि स्वीट्स का गिफ्ट देने से शायद ये बच्चा बहल जाएगा और कंसोल हो जाएगा. तो वो उसको स्वीट शॉप के पास में लेके जाता है. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. I want my father, I want my mother. और वो उसको जब स्वीट वाले के पास ले जाके पूछता है कि तुम्हें कौन सा स्वीट चाहिए बच्चे, तो वो अपना फेस टर्न कर लेता है वहाँ से और केवल सुबकता रहता है, रोता रहता है और बोलता है कि मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए. So you see children that in this story what happens is you can very much relate to your own real life. कि हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करते हैं, और हम उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट भी समझते हैं. बट वी हैव एन अनकंडीशनल लव बिटवीन अस. पेरेंट्स में, चिल्ड्रन में एक अनकंडीशनल लव होता है, उनका जो बॉन्ड होता है लव का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. हम चाहे कितना भी समझ लें कि हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जैसे ही उनका जो प्रोटेक्टिवनेस हमारे पास से जाता है, हम उनके पास में बहुत ही सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड फील करते हैं. लेकिन जैसे ही हम उस ऑरा से, उनकी प्रोटेक्शन की ऑरा से बाहर आते हैं, तब एकदम से हम इनसिक्योर हो जाते हैं और हमारे लिए सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं. हमको ये सब बेमानी लगने लगता है कि ये स्वीट्स हों, चाहे टॉयज़ हों, चाहे फ्लावर्स हों, जो सारी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं अपने पेरेंट्स के साथ होने पर, और हम कॉन्स्टेंटली डिमांड करते रहते हैं उनसे वो चीज़ें लेने के लिए. बट जैसे ही हम अपने पेरेंट्स से जुदा हो जाते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स अब हमारे साथ में नहीं हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें ही बेकार लगने लगती हैं और यूजलेस लगने लगती हैं. So now I think you all will learn to respect your parents also after listening to this story. Read this story once again, listen to the video once again and try to do the question answers. Thank you.